کہ اگر کسی عاقلہ بالغہ لڑکی نے اپنا نکاح کیا اور کفو میں کیا تو نکاح نافذ ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ عاقلہ بالغہ کے اوپر کسی کو ولایت اجبار یا ولایت الزام حاصل نہیں ہوتی، عاقلہ بالغہ اپنے نکاح کا اختیار رکھتی ہے۔ لیکن اگر اس عاقلہ بالغہ نے غیر کفو میں نکاح کر لیا ہے تو اس کا نکاح نافذ ہوگا یا نہیں نافذ ہوگا؟ اس سلسلے میں ایک روایت جو پہلے مفتابی تھی وہ یہ ہے کہ اس کا غیر کفو میں کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوگا، اور دوسری روایت جو ہے جس کو انہوں نے پہلے نمبر پر حسکفی نے بیان کیا ہے، یعنی ان کے الفاظ میں کہیے کہ دوسری روایت تو یہ ہے کہ نکاح نافذ نہیں ہوگا، اور پہلی روایت یہ ہے کہ نکاح نافذ ہو جائے گا، ظاہر الروایہ یہی ہے۔ لیکن نکاح نافذ ہوگا تو اولیاء سے مراد اس کے اسباب بنفسہ، ان کو حق اعتراض حاصل ہوگا، وہ اگر چاہیں تو اس نکاح کو قاضی کے ذریعے سے فسخ کرا سکتے ہیں، الا یہ کہ انہوں نے ظاہری طور پر رضامندی سے یا دلالتاً رضامندی سے اپنے اس اختیار کو ختم کر دیا ہو۔ ظاہری رضامندی جیسے کہہ دیا ہو ہم اس نکاح پہ راضی ہیں، اور دلالتاً یعنی وہ اتنے دن تک چپ رہے ہوں کہ آ جائے گا کہ انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، ایک مرتبہ راضی ہو گئے تو پھر ان کا حق اعتراض ختم ہو گیا۔ اب کل ہو کر وہ کہنے لگے ہم تو اعتراض کرتے ہیں، اعتراض ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں وہ بناء علی الاول، پہلی روایت کے بموجب، اور پہلی روایت کیا ہے ان کے ہاں؟ یعنی اگر لڑکی نے بالغہ نے غیر کفو میں نکاح کیا تو اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا، اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہوگا۔ وَبِنَاءً عَلَى الْأَوَّلِ، پہلی روایت کے بموجب، وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّوَایَہ، اور وہ پہلی روایت ہی ظاہر الروایہ ہے۔ فَرِضَ الْبَعْضِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ كَالْكُلِّ لِثُبُوتِهِ لِكُلٍّ كَمُلًا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کے کئی لڑکے ہو سکتے ہیں، بیٹے کئی ہو سکتے ہیں۔ مثلا مجنونہ ہے، اس کا نکاح کرانے کے لیے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، لیکن باپ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، دادا ایک ہوتا ہے، چچا کئی ہو سکتے ہیں، چچا کے لڑکے کئی ہو سکتے ہیں۔ مثلا خالدہ ایک عاقلہ بالغہ لڑکی ہے، ان میریڈ ہے، ابھی نکاح نہیں کیا ہے، اس خالدہ کا ولی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، چچا اس کے اولیاء بن رہے ہیں۔ اس لڑکی عاقلہ بالغہ خالدہ نے غیر کفو میں نکاح کر لیا تو یہ جو اس کے چچا ہیں، مثلا 4 ہیں، ان چاروں میں سے ہر ایک کو حق اعتراض، حق فسخ حاصل ہے، وہ چاہیں تو نکاح کو فسخ کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان 4 چچاؤں میں سے ایک چچا بھی راضی ہو گیا، نکاح سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں اس غیر کفو کے نکاح پر راضی ہوں، یا نکاح کے بعد اس نے کہا کہ میں اس نکاح پر راضی ہوں، تو ایک بھی اگر راضی ہو گیا تو تمام کا راضی ہونا سمجھا جائے گا اور تمام کا حق اعتراض ختم ہو جائے گا۔ پورا حق اعتراض بنتا ہے 4 کو مل کر، چاروں چچا میں سے ہر ایک کو پورے طور پر حق اعتراض حاصل ہے،
लेकिन 4 विकेट में से एक भी अगर गिर गया, 4 चचाओं में से एक भी राजी हो गया, तो गोया 25% रजामंदी हो गई। तो एक का राजी होना कुल का राजी होना है। इसकी मिसाल देते हैं कि ये ऐसे है जैसे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, अब दारुल हर्ब से, अमेरिका से किसी को यहां पर बुलाना है, मुझे बुलाना है किसी को, तो मैंने अगर उसको स्पॉन्सर कर दिया, मैंने उसको दावत दे दी और मैंने उसको यहां बुला लिया, तो मेरी तरफ से अमान हो गई। जब मैंने उसको अमान दे दी तो पूरे मुल्क की तरफ से अमान हो गई। तो एक सबके कायम मकाम हो जाएगा। कोई भी अमान नहीं देगा, हर भी मुल्क में दाखिल हो गया तो उसको समझा जाएगा दहशतगर्द, लिहाजा उसका खून हमारे लिए माफ होगा। लेकिन अगर एक ने भी अमान दे दी तो फिर वो दहशतगर्द नहीं, वो तो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो फिर उसको कत्ल करना किसी के लिए जायज नहीं होगा। तो एक सबके कायम मकाम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक चचा ने भी अगर अपने हक एतराज को खत्म कर दिया तो सब की तरफ से हक एतराज खत्म हो जाएगा। दूसरी नजीर पेश करते हैं कवद, किसास। किसास में अगर कोई मकतूल के मसलन 4 औलिया हैं जिनको किसास लेने का हक हासिल है, उन 4 में से अगर एक ने भी किसास को माफ कर दिया तो किसास माफ हो जाएगा सब की तरफ से, फिर उसके ऊपर खाली दियत लाजिम रह जाएगी, किसास माफ हो जाएगा। इसी तरह जैसे वहां एक का माफ कर देना सब का माफ कर देना है, इसी तरह यहाँ एक का हक एतराज खत्म कर देना सब का खत्म कर देना है। लेकिन ये क्या है, 4 चचा यही वली हैं, और चचाओं के होते हुए चचा के लड़के वली नहीं है, और अगर बाप या दादा है तो फिर चचा भी वली नहीं है। तो एक दर्जे के औलिया हों, यानी वो इस वक्त औलिया बनते हों, बिलफेल औलिया बनते हों, तो उनमें से बाज का राजी होना कुल के राजी होने के दर्जे में है। फरीदल बाद मिनल औलिया, बाज औलिया की रजामंदी कबल अक़द औ बादहू, चाहे वो अक़द से पहले राजी हो या अक़द से के बाद राजी हो, कल कुल्ली ऐसा है जैसे कि सबका राजी हो जाना। लिसुबूती ही लिकुल्लिन कमुलन, इसलिए कि वो हक एतराज साबित है, लिकुल्लिन हर एक के लिए, कमुलन पूरे पूरे तौर पर, कवलायत अमान व कवदिन, जैसे वलायत अमान है और वलायत किसास है। वसनुहक़्क़िक़ुहु फिल वक़्फ़ी, और इसकी तफसीलात और तहक़ीक़ किताबुल औक़ाफ़ में बयान करेंगे। लेकिन शर्त है लविस्तवौ फी दरजती, अगर ये एक ही दर्जे के औलिया हों। अगर दादा वली है तो चचा को कोई इख्तियार नहीं, उसके राजी और रजा और अदम रजा का कोई एतबार नहीं। 4 चचा औलिया, उनमें से कोई राजी हो तो रजा का एतबार होगा, लेकिन चचा के लड़के राजी हो तो उनका कोई एतबार नहीं होगा। व इल्ला फला, वरना तो फिर कोई एतबार नहीं होगा। वलिल फलिल अकरब मिनहुम हक़्क़ुल फ़स्क़ी, जो अकरब वली है, बाप है या बाप के बाद दादा है या दादा के बाद चचा है, उनको हक़ फ़स्क़ हासिल होगा। व इल्लम यकुन लहा वलियुन, और अगर कोई वली है ही नहीं तो आकिला बालिगा लड़की जैसे कुफू में निकाह कर सकती है और निकाह दुरुस्त हो जाता है, गैर कुफू में भी निकाह कर सकती है, गैर कुफू में भी निकाह दुरुस्त हो जाता है। लेकिन गैर कुफू में औलिया को हक एतराज होता है, और अगर कोई वली नहीं तो फिर किसी को हक एतराज भी नहीं। तो व इल्लम यकुन लहा वलियुन, और अगर ना उसका बाप है, ना दादा है, ना चचा है, ना चचा के लड़के हैं, असबा बिनफ्सिही, जो औलिया हक एतराज रखते हैं उनमें से कोई है नहीं, फहुवा अल अक़द सहीहुन,
تو वो यानी अक्द सही है, नाफिज है मुतलकन। मुतलकन से मुराद चाहे उसने कुफू में निकाह किया है तब भी नाफिज है, और चाहे उसने गैर कुफू में निकाह किया है तब भी नाफिज है। और इत्तिफाकन, अब इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, वली जो एतराज करने वाला था वो बाकी ही नहीं। वक़ब्ज़ुहु ए वलियुन लहु हक़्क़ुल एतराज़ अल महर व नहवहु मिम्मा यदुल्लु अला रिदा रिदन दलालतन इन काना अदमुल कफ़ाअति साबितन इंदल क़ादी क़ब्ल मुख़ासमतिही व इल्ला लम यकुन रिदन। ये कहते हैं कि औलिया को हक़ एतराज है। यही सूरत के लड़की ने निकाह गैर कुफू में कर लिया है, और गैर कुफू में निकाह करने के बाद अब 4 चचा है मसलन, उनको हक़ एतराज है, बाप है या दादा है उसको हक़ एतराज है। तो वो हक़ एतराज अगर आप अपना सराहतन या दलालतन साकित कर दे तो फिर वो हक़ एतराज खत्म हो जाएगा और निकाह बिल्कुलियत नाफिज हो जाएगा। सराहतन अगर वो हक़ एतराज साकित कर दे, मसलन यूं कहे मैं इस निकाह पर राजी हूं, और दलालतन साकित कर दे, तो दलालतन की एक शक्ल ये बयान करते हैं कि वली जिसको हक़ एतराज था, मसलन बाप या दादा, जो भी अकरब वली उसका मौजूद है बिलफेल, उसी को हक़ एतराज है। वो बैठा हुआ है, निकाह हो गया, खालिदा ने खालिद से निकाह करा लिया। अब खालिद आया और खालिद ने जो है लड़की के अब्बा या दादा जो भी वली है उसके हाथ में 5,000 रुपए दिए, यूं को ये रख लीजिए अब्बा हुजूर, और ये उसके खालिदा के मेहर के पैसे हैं, इन्होंने ले लिए। या वो मिठाई का डब्बा लेकर आया और उसने कहा कि मुबारक हो, निकाह हो गया है खालिदा से मेरा, तो उसने वो मिठाई का डब्बा लेकर रख लिया, मुबारकबादी को कबूल कर लिया। तो इसके माना ये है कि वो निकाह पर राजी हो गया है, ये दलालतन रजामंदी है। वह कब्ज़ुहु, और उसका यानी वलीयुन लहु हक़्क़ुल एतराज, उस वली का जिसको हक़ एतराज हासिल है उसका मेहर वगैरह वगैरह मुबारकबादी के लिए दी गई कोई चीज, उस पर कब्जा कर लेना, ऐसी कोई चीज जो रजामंदी पे दलालत करती हो, रिदन, ये भी दलालतन रजामंदी है। लेकिन 2 सूरतें हैं, आगे इनकाना कह रहा है, और 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि खालिदा ने खालिद से निकाह किया और खालिद जो है मेहर के पैसे लेकर आए, मिठाई का डब्बा लेकर आया, तो जब इसने अब्बा ने, दादा ने, वली ने वो मेहर या मिठाई का डब्बा मुबारकबादी को कबूल किया है, उस वक्त इसकी 2 कैफियतें हैं। ये उसको गैर कुफू समझ रहा है या कुफू समझ रहा है। अगर कुफू समझ रहा है तो इसको हक़ एतराज था भी नहीं, कुफू में निकाह करे तो हक़ एतराज है ही नहीं, तो फिर इसका मेहर पर कब्जा कर लेना एतराज को साकित करना भी नहीं है। और अगर ये गैर कुफू समझ रहा है, अब इसको हक़ एतराज है, अब अगर ये मेहर पर कब्जा करता है, मुबारकबादी कबूल करता है, तो गोया अपने हक़ एतराज को साकित करता है। इन काना अदमुल कफ़ाअत साबितन, अगर अदम कफ़ाअत साबित हो, और साबित है या नहीं इसका पता चलेगा इंदल कादी के दरखास्त काजी के यहाँ गई भी हो, कबला मुखासमती ही, और अभी फैसला ना हुआ हो काजी की तरफ से। और अगर काजी ने तफरीक शरई का फैसला कर दिया, निकाह को फस कर दिया, तो अब इसके मेहर पर या मुबारकबादी को कबूल करने पर कोई फैसला, कोई फायदा नहीं होगा। वइल्ला लम यकुन रिदन, और अगर अदम कफाअत का इसको पता ही नहीं है, तो समझ रहा है खालिद को कि तो करोड़पति है, अल्लामतुद्दहर है, बड़ा वजी शख्स है, ये समझ रहा है कि कुफू है, तो अभी इसको हक़ एतराज है ही नहीं इसकी निगाह में। वइल्ला लम यकुन रिदन, तो इसका मेहर वगैरह पर कब्जा कर लेना अपने हक़ एतराज को साकित करना और रजामंदी नहीं कहलाएगा।
कमा ला यकून सुकूतुहु रिदन, जैसे कि इसका साकित रहना, खामोश रहना रजामंदी नहीं कहलाएगा। कब तक खामोश रहना? मालम तलिद, जब तक के बच्चा ना हो जाए या हमल जाहिर ना हो जाए। हमल जाहिर हो जाए तो समझा जाएगा कि अब तक राजी चुप रहना और हक एतराज के लिए दारुल कज़ा में ना जाना, ये इसकी रजामंदी की दलील है। व अम्मा तस्दीक़ुहु बिअन्नहु कुफ़्उन फला युस्क़ितु हक़्क़ल बाक़ीन, मसलन वही शक्ल, 4 चचा हैं, वो औलिया हैं, और इस लड़की खालिदा ने, आकिला बालिगा ने गैर कुफू में निकाह कर लिया। अब अगर चारों में से एक भी राजी हो जाए तो सबका हक एतराज साकित हो जाएगा। ऊपर आ चुका मसला। लेकिन राजी नहीं हो रहा है, एक यूं कह रहा है कि ये जो खालिदा ने खालिद से निकाह किया, ये कुफू में निकाह किया, खालिद हमारा कुफू है। दूसरे 3 चचा ये कह रहे हैं कि ये हमारा कुफू नहीं है। तो ये जो कुफू कह रहा है ये अदम कफाअत पर राजी नहीं है, लिहाजा इसके राजी होने से बाकी का हक एतराज साकित नहीं होगा। हाँ, अदम कफाअत को तस्लीम करते हुए अगर ये फिर हक एतराज को साकित करता है तो सबका हक एतराज साकित हो जाएगा। वो अम्मा तस्दीक़ुहु, और इसका ये कहना कि बिअन्नहु कुफ़्उन, के जहां इसने निकाह किया है, खालिदा ने खालिद से किया है तो खालिद इसका कुफू है। फला युस्क़ितु हक़्क़ल बाक़ीन, इसका ये तस्दीक करना बाकी 3 चचाओं के हक के एतराज को साकित नहीं करता। मबसूत में वला तुजबरुल बालिगतुल बिक्रु अला निकाह लिन्क़िताइल वलायति बिल बुलूग़। ये कहते हैं कि अब खुलासा ये निकला कि आपके सामने वाज़े हो गया मसला, और ये खुलासा निकला कि आप उसको आकिला बालिगा लड़की अपना निकाह बजाते खुद कर सकती है। कुफू में करे तो किसी को हक एतराज भी नहीं, गैर कुफू में करे तो औलिया को हक एतराज होगा। वो चाहे तो निकाह को फस करा ले और चाहे तो उसी पर राजी हो जाए, लेकिन लड़की का किया हुआ निकाह नाफिज हो जाएगा। क्या लड़कियों को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जिन माँ बाप की जेर परवरिश वो रही है, उनकी रजामंदी के खिलाफ उस लड़की को या आकिल बालिग लड़कों को निकाह नहीं करना चाहिए। ये है बाब अखलाक। बाब अखलाक, आप जेर परवरिश रहे बचपन से लेकर 20 साल तक, जो है 25 साल तक, सारे खर्चे, सारी तमन्नाएं, सारी मुरादें माँ बाप से वाबस्ता रही, और आज जरा सा इश्क के चक्कर में आकर किसी लड़की के आपने माँ बाप को पूछा भी नहीं। ये ऐसा है कि आपकी शादी हुई, आपने किसी करीबी दोस्त को नहीं पूछा, वो आपके साथ बोलने को तैयार नहीं कि भाई ये तो कैसी दोस्ती, खुशी में ना गमी में, खुशी में आपने शरीक नहीं किया, गम में हम शरीक नहीं हुए, ये किस दोस्ती का नाम है? कहते हैं दोस्ती पक्की। तो ये क्या माँ बाप के हुए कि जनाब कभी खुशी का मौका आया, आपने उनकी रजामंदी भी हासिल नहीं की। तो लड़की को या लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी को कहते हैं वलायत नुदुब और वलायत इस्तेहबाब, के बालिग और बालिगा के ऊपर औलिया को वलायत हासिल होती है, वलायत नुदुब और वलायत इस्तेहबाब, लेकिन वलायत इजबार और वलायत इल्जाम हासिल नहीं होती। लिहाजा लड़की को अगर माँ बाप यूं कहें कि तेरा निकाह फला जगह कर रहे हैं, तो लड़की को हक हासिल है कि वो इनकार कर दे। अगर उसने इनकार कर दिया तो जबरदस्ती बिल जबर उसका निकाह नहीं कर सकते, और अगर उसने अपनी मर्जी से कुफू में निकाह कर लिया तो बिल जबर उसको निकाह से इनकार नहीं कर सकते, उसका निकाह नहीं तोड़वा सकते। हाँ, अगर सगीरा है तो फिर उसको इख्तियार नहीं है कि वो अपना निकाह बजाते खुद कहीं पर कर ले। तो वला तुजबरुल बालिगतुल बिक्रू, बालिगा चाहे बाकिरा ही क्यों ना हो,
یہ لفظ بکر سے اشارہ کرتا ہے اور شوافع کے مسلک کی طرف کہ ہمارا مسلک میں مدار بلوغ اور عدم بلوغ پر ہے، اور شوافع کے یہاں مدار جو ہے باقرہ، بکارت اور سیوبت پر ہے۔ تو بالغہ باقرہ اس کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا لانقطاع الولایت بالبلوغ، اس لیے کہ بالغ ہوتے ہی ولایت، کون سی ولایت؟ ولایت اجبار جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، رہی ولایت استحباب وہ باقی ہے۔ ولایت استحباب نام کس چیز کا ہے؟ مانتے کا پیر ہے، مانتے کا پیر، اس کو کہتے ہیں مانتے کا پیر ہے۔ اس چاہے تو باقی رکھے اس تعلق کو کہ وہ ماں باپ سے پوچھے بغیر شادی نہ کرے، اور چاہے تو باقی نہ رکھے، تو اس پر ولایت اجبار ختم ہو گئی ہے۔ لانقطاع الولایتی ولایت الاجباری، ولایت الاجباری او الالزامی، ولایت اجبار و الزام اس پر سے ختم ہو گئی ہے، رہی ولایت ندب اور ولایت استحباب، ولایت ندب اور ولایت استحباب باقی رہتی ہے۔ وبناء على الاول وهو ظاهر الروايه، عبارت پڑھ رہا ہوں، فرض البعض من الاولیاء قبل العقد او بعده كالكل لثبوته لكل كملا كولايه امان وقود، وسنحققه في الوقت لو استووا في الدرجه، والا فللاقرب منهم حق الفسق، وان لم يكن لها ولي فهو اي العقد صحيح نافذ مطلقا اتفاقا، وقبضه اے ولی له حق الاعتراض المہر ونحوه مما يدل على الرضا رضا دلالة ان كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مخاصمته، وإلا لم يكن رضا، كما لا يكون سقوطه رضا ما لم تلد، وأما تصديقه بأنه كفء فلا يسقط حق الباقين مبسوط، ولا تجبر البالغة البکر على النکاح لانقطاع الولایت بالبلوغ۔ آگے پھر اور مزید مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔